Dear students, today I am going to discuss about a particular question in your exercise 5.1 of the chapter continuity, which is little different type of question. So here you are going to solve that find all point of discontinuity. Find all point of discontinuity of the function. Function क्या है? f(x) equal to modulus of x minus modulus of x plus 1. उस function की क्या है डोमेन के अंदर कौन सी पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है आपको निकालना है. ऐसा कोई पॉइंट है, अगर है तो क्या है वो हमें आज क्या करना है, निकालना चाहिए. ठीक है. सो फंक्शन को थोड़ा सा इलास्ट्रेट करें. आप लोगों को पता होगा कि इफ एफ इज़ ए फंक्शन विच इज सम ऑफ टू फंक्शन और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, एंड देन इफ this is the domain of the function and it is the domain of the function, then their intersection df intersection dg is the domain of f. अगर कोई भी एक फंक्शन दो फंक्शन का सम हो या डिफरेंस हो तो उसका डोमेन क्या होगा, ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बाकी दो गिवन दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन होगा. ठीक है. दिस इज द पर्टिकुलर स्मॉल कॉन्सेप्ट यू ऑलरेडी नो. Now you see your function f(x) is what? A modulus of x. This is your function, okay? X equal to what? Modulus of x minus modulus of x plus 1. We know that mod function, modulus function क्या है? Modulus function का ग्राफ, इसका ग्राफ क्या होगा? This is the origin. x equal to 0 मिलेगी, so वहाँ से शुरू होगा. So positive infinity to negative infinity, okay? The domain is the set of real number, okay? Domain is the set of real number. Now उसका ग्राफ क्या होगा? Put x plus 1 equal to 0, then you will get x is equal to what? minus 1. इसमें हमने put x equal to 0 किया तो 0 से उसका शुरुआत है. तो इसका ग्राफ क्या होगा? x is equal to minus 1 is somewhere else, this is minus 1. तो ग्राफ b शेप भी होगा उसका, सेम टाइप लाइक दिस, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट होगा minus 1 इससे. तो वहाँ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. This is your graph, okay? Graph of the particular function modulus of. Again इसका domain minus infinity to what? Plus infinity, okay? So graph of this function modulus function का क्या है? Domain set of real number, इसका domain भी set of real number है. तो fx का domain क्या होगा? What will be the domain? Domain of fx will be set of real number. इसका भी set of real number, इसका भी set of real number. डिफरेंस है तो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा? That is domain is also set of real number. So finally what we get, domain of the function is the set of real number. Now we are going to split this particular function in a different parts of the domain, okay? Domain क्या है? What is the domain? Here you see domain is what? Set of real number minus infinity to what? Infinity. From the particular function we are getting one point x equal to 0, another point x equal to what? minus 1, okay? This 2 point I am going to try to plot here. Minus 1 is here, 0 is here, okay? Now you see your domain is divided to how many parts? This part is x less than minus 1, or you can say including this, then it will be what? Less than equal to. This part is what? minus 1 less than x less than 0. This part is x greater than 0. And there are two particular point, one is minus 1 and also 0. X is equal to minus 1 and x equal to 0. Now I am going to explain, try to find this particular function in a different part. इस part में ये इसका function का value क्या होगा? x less than minus 1 होने से what will be the value of this? We are going to find, okay? Now see x less than minus 1, very interesting. X less than minus 1 means you can write 1 इधर ले आओ तो x plus 1 less than 0, ये मिलेगा. Understood? And if again x less than minus 1 means x is less than 0, because x is less than minus 1 means it is automatically less than 0, okay? So from this expression we are getting x less than 0 and x plus 1 less than 0, ठीक है? Now आपका modulus of x फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? modulus of x is equal to what? x when x positive और equal to 0 कह सकते हो, and minus x when x less than 0, ठीक है? दिस द मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है. अंडरस्टूड? आप इक्वलिटी इधर भी से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली दिया जाए तो इसमें इक्वलिटी दे सकते हो. इफ़ यू गिव इक्वलिटी हियर देन यू नो नीड टू गिव हियर, बिकॉज व्हेन x equal to 0 मॉडुलस ऑफ 0 equal to what? 0. अंडरस्टूड?
नाउ x इज़ लेस देन 0, इन दिस इंटरवल में क्या है, x लेस देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -x होगा। तो इसमें आप क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे। और इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में x लेस देन -1 मीन्स व्हाट, ये x प्लस 1 खुद क्या है, नेगेटिव है, ये खुद क्या है, नेगेटिव है। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 के अंदर जो पार्ट है, जैसे इस मॉडुलस के अंदर x क्या है, खुद नेगेटिव था, तो उसका वैल्यू क्या होगा, -x हो गया। तो इसका वैल्यू x प्लस 1 उसका वैल्यू क्या है, खुद नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो उसका मॉडुलस क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा -x प्लस 1 होगा, क्या होगा, -x प्लस 1 होगा। जैसे ये फॉर्मूला यूज़ किया है, x खुद लेस देन 0 है, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल -x, सिंस x प्लस 1 इज लेस देन 0, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, -x प्लस 1। तो ये जो माइनस है, ये जो माइनस है, दोनों मिला के क्या होगा, प्लस होगा, एंड फाइनली इट बिकम्स x प्लस 1। ठीक है, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन -1, x इज लेस देन व्हाट, -1। अभी x इक्वल टू 1 पे सोच लो, x इक्वल टू 1 में क्या होता है, x इक्वल टू 1 में टेस्ट करके देखो, इफ़ यू पुट x इक्वल टू x इक्वल टू व्हाट, -1, तो -1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ -1 इज इक्वल टू +1। एंड इसमें अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करे, x इज इक्वल टू -1 पुट करे, -1 प्लस -1 क्या होगा, 0 होगा, मॉडुलस ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 माइनस 0 क्या आ रहा है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, द आंसर इज व्हाट, आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अंडरस्टूड, इट इज इक्वल टू 1। एंड बाकी लेस देन -1 में x एंड -x कैंसिल होकर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम -1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, बिकॉज x इज इक्वल टू -1 में भी 1 आ रहा है, और लेस देन -1 में भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द कंडीशन। इफ लिख दो, इफ ठीक है। नाउ कम्स टू दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके, इस इंटरवल में आ जाए। इस इंटरवल में क्या है, -1 लेस देन x लेस देन 0 है। ठीक है, -1 लेस देन x लेस देन 0, इसमें दो पार्ट है, दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ अनदर पार्ट। तो इसमें अगर थोड़ा सा सेपरेट करें, -1 लेस देन x, देन व्हाट विल हैपन, -1 गो इन द राइट हैंड साइड, ये अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज़ पॉजिटिव, x प्लस 1 इज़ पॉजिटिव, एंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑलरेडी x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो अभी x लेस देन 0 होने से मॉडुलस ऑफ x क्या है, -x, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, -x, एंड फॉर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, फॉर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स ये अंदर की जो इनसाइड क्वांटिटी दैट इज x प्लस 1 विच इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव, तो देन व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, द मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, modulus of x plus 1 is equal to what, x plus 1. I hope that you are understanding. I am using the formula of modulus function. Okay, so you can write modulus of x plus 1 as what, बीच में क्या है, माइनस है, modulus of x plus 1 is what, x plus 1. Okay, so इसमें कंडीशन क्या होगा, इफ कौन सी कंडीशन में, इस कंडीशन में -1 लेस देन x लेस देन what, 0. Okay, नाउ लेटर हाफ लास्ट पार्ट में हम जाए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज x ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। नाउ टेल मी, इफ x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x इज ग्रेटर देन ऑल्सो -1। यहाँ में x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट x इन दिस पोर्शन, वट एवर विद द x, दिस x all are greater than -1, so x greater than 0 means what, x greater than -1 ऑटोमेटिकली। सो x ग्रेटर देन 0 होने से मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, एंड x ग्रेटर देन -1 मीन्स व्हाट, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 होगा। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ इसमें क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 0, अभी इक्वलिटी रह गया, इस पॉइंट में रह गया, 0 पॉइंट में क्या हो रहा है, चेक, 0 पॉइंट में क्या आ रहा है, इसका वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मैं x एंड -x कैंसिल हो गए, -1 हो रहा है, दैट मीन व्हेन x ग्रेटर देन 0 f x इक्वल टू व्हाट, -1। नाउ एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस चेक हियर,
तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इसका वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 0, एंड इसका वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस ऑफ 1 होगा, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ 0 इज 0 एंड -1 इज इक्वल टू व्हाट, -1। दैट मीन्स व्हाट हैपन फॉर x ग्रेटर देन 0 वैल्यू इज -1, fx का वैल्यू क्या है, -1 है, और x इक्वल टू 0 में भी क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज व्हाट, -1। सो यू कैन इंक्लूड द इक्वलिटी हियर ऑल्सो, अंडरस्टूड। तो फाइनली थ्रू आउट द डोमेन पूरी रियल नंबर में हमने क्या किया है, फंक्शन को स्प्लिट कर दिया है, फंक्शन को क्या किया है, स्प्लिट कर दिया है, एंड देन इट विल बी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट। देन फाइनली व्हाट वी विल गेट, दिस इज कैंसलिंग एंड दिस इज 1। कंडीशन क्या है, इफ x लेस देन इक्वल देन -1, एंड दिस -x कैंसिल होगा, -1 होगा, सॉरी -x -2x -1 if -1 less than x less than 0, and finally it will be what, -1 if x is greater than equal than 0. So your domain is split into 3 parts, okay, your function is split into 3 parts, domain को 3 part में split किया, and accordingly what are the functional value, one is 1, one is -2x -1, another is what, -1, okay. Now this type of question already you have done, and here you see when x less than minus, there are 3 general conditions. This is case number 1, case number 2, case number 3, all the general case discussed first. When x less than -1, fx equal to 1, which is a constant function, and hence it is continuous. So एक sentence में ख़त्म कर सकते हैं, when -1 less than x less than 0, fx equal to -2x -1, which is a polynomial function and hence continuous for all x lying between this interval, okay. Then finally when x greater than 0, fx equal to -1, which is a constant function and hence it is continuous. You can complete it. Your job is to find the continuity, check the continuity at -1 and 0. This is a particular point and this is a particular point, okay. So you can use the left hand limit, right hand limit rule and functional value. f of -1 क्या है, when x is equal to -1, f of -1 is equal to what, 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट रूल यूज़ करो, ठीक है। यहाँ में भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो, f0 निकालो और चेक करो कंटिन्यूटी होता है कि नहीं। अगर सब पॉइंट में कंटिन्यूस हो गया, इफ सपोज ऑलरेडी जनरल केस में तो कंटिन्यूस हो गया, ओनली डाउटफुल केसेस आर व्हाट, -1 एंड 0, तो -1 एंड 0 में चेक करने के बाद फाइनली अगर कंटिन्यूस मिल जाए तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू कैन राइट देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। सारे पॉइंट में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। आई होप दैट यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस many a time, okay. I hope that this question is very interesting for you, and how I split it, that is important, okay. मैंने कैसे split किया, मैंने -1 और 0 पॉइंट क्यों लिया, okay. I am taking -1 and 0 because I to put x equal to 0 and get 1 point and put x plus 1. तो आपकी क्वेश्चन में अगर वो बदल दे, सपोज इसमें x plus 1 दे दिया, इस पर x plus 2 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको x plus 1 को अगर ऐसा हो जाए फंक्शन x plus 1, ये भी हो सकता है क्वेश्चन, उसका भी कंटिन्यूटी चेक करो, एग्जाम में आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, x plus 1, तो इसमें एक पॉइंट मिलेगी -1, इसमें एक पॉइंट मिलेगी -2, तो उस हिसाब से आप प्लॉट करेंगे और आपका फंक्शन को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो ये एक होमवर्क हो सकता है आपके लिए, आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, आपकी कोशिश कर सकते हैं। fx इक्वल टू 6x, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज मॉडुलस फंक्शन उसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, उसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, एंड फाइनली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर। सो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कर सकते हैं, सो दैट यू कैन एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. So whenever you are going to solve such type of question, then your confidence will be built, and then any type of question asked in the examination, you can deal it very nicely, effectively and sincerely. Okay, thank you very much, all the best.